चलो स्टार्ट करें कैपिटल स्ट्रक्चर। यस मैम। यस मैम। मैम लेक्चर 3 बजे तक है ना? हाँ 3:15 तक मोस्टली। एक बार मैं कंसेप्ट पढ़ा दूँ फिर हम स्टॉप कर देंगे। ओके मैम। Okay, so your next part is capital structure. It is a part of your chapter number 3 only. Chapter number 3 में हमने क्या किया? लेवरेज किया। लेवरेज मतलब क्या कि कौन सी कंपनी में कितना रिस्क ज्यादा है वो हमने चेक किया, राइट? नेक्स्ट अभी हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट टेक डाउन व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस points to be discussed. So first we will be discussing introduction. Then second, capital structure versus financial structure. Then third, we will be discussing concept of optimum capital structure. Then types of capital structures. Then fifth is concept of indifference point. Then sixth is concept of financial break-even point. Then we will study capital structure theories. In this we will have net income approach, then net operating income approach, third one is traditional approach, and fourth है मोदी ज्ञानी मिलर अप्रोच। मोदी Miller approach. It is also called as approach. देख लो इतना। डन मैम। Done?
Okay. So what is the name of the topic? Capital structure. What do you mean by capital? What do you mean by capital? Funds raised by the company. Money which is required for the business. Yes. So I can call it as money which is required to start or run the business. बराबर, money which is required to start or run the business. And what do you mean by structure? Structure means arrangement. Structure मतलब क्या? Structure means arrangement. To arrange this money. How are we going to arrange this required capital? मेरे को business चालू करने के लिए, business चलाने के लिए पैसा लगता है. इस पैसे का मैं जुगाड़ कहाँ से करूँगी? That will be called as what? Capital structure. Understood? तो इफ यू रिक्वायर समझो 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, आपको बिजनेस चालू करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो आप 1 करोड़ रुपया कहाँ से लेके आओगे? Yes, from where you will arrange. First you will check your own pockets. आपके पास खुद के पास कितना है, मतलब that will be your own funds. अगर if own funds is not sufficient, then what you will do? You will go for the loan. फिर आप लोन किसके किसके पास से ले सकते हो? You can take loan from your families. You can take loan from your friends. You can take loan from bank. बराबर? तो वो क्या हो जाएगा? आपका borrowed funds हो जाएगा. So that will be nothing but your debt. So similarly, now if we convert this example into business, तो business में चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो उसको मैं कहाँ से रेज कर सकती हूँ? I can ask for the equity share capital. अगर equity share capital sufficient नहीं है, तो मैं चेक करूंगी, मैं debt लूंगी. अब debt किसके पास से लूँ? Preference shareholders के पास से लूँ, debentures के पास से लूँ, या बैंक लोन के पास से लूँ. एंड जिसके पास से भी लूंगी, उनको रिटर्न्स तो देना पड़ेगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न्स देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न्स देना पड़ेगा? डिविडेंड. डिबेंचर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. बैंक लोन वालों को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ओके, सो आई विल फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन में चूज करूँ टू रेंज द मनी. ओके, सो व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? Introduction. So what do you mean by capital structure? Capital structure is nothing but money required to start or run the business. Now in this question, in this chapter, we have to answer certain questions. What do you mean by capital structure? How to arrange the money? How to arrange the money required to start or run the business. मैं कौन से तरह से अपना बिजनेस, कौन से तरह से मैं पैसा अरेंज करूंगी सो दैट मैं अपना बिजनेस क्या कर सकूं? स्टार्ट कर सकूं. ओके, तो द बेस्ट अरेंजमेंट विल बी दैट, उस तरह से अरेंज करेंगे जिससे मेरे शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज हो. क्या इंक्रीज हो? We will choose that option. We will choose that plan. अब लोग ऊपर देखा ना, इक्विटी और डेट. अगर समझो तुम्हें बिजनेस चालू करने के लिए 1 करोड़ रुपीज चाहिए, if so one option will be that you arrange that full 1 crore fully from the equity. तो वो हो गया आपका प्लान 1. दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? 50-50 करोगे, मतलब 50 इक्विटी 50 डेट, तो वो हो गया आपका ऑप्शन 2, मतलब प्लान 2. तो प्लान 1 क्या था? पूरा का पूरा इक्विटी. प्लान 2 क्या था? इक्विटी प्लस डेट. एंड प्लान 3 क्या है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग क्या कर सकते हो आप? ऑप्शंस, अलग अलग प्लान्स इवेल्युएट कर सकते हो. तो इन तीनों में से हम कौन सा प्लान चूज करेंगे? ओके, सो वी विल चूज दैट प्लान व्हिच इंक्रीजेस द वेल्थ ऑफ माय इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज होना, मतलब क्या? मेरे कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होना. जब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ अपने आप इंक्रीज होगा. तो व्हाट शुड बी माय मोस्ट मेन ऑब्जेक्टिव? क्या है? अरेंज मनी सच दैट, अरेंज मनी such that
equity shareholder increases. Wealth of equity shareholder increase. अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का वेल्थ कब इंक्रीज होगा? जब शेयर होल्डर्स का मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा. शेयर होल्डर्स का इक्विटी शेयर वेल्थ कब इंक्रीज होगा? व्हेन मार्केट प्राइस इंक्रीजेस. सो वेल्थ इंक्रीजेस whenever MPS increases. What is MPS? What is it? Market price per share. Market price per share. ठीक है. और मार्केट प्राइस कब इंक्रीज होगा? When the market price increases. So MPS increases whenever EPS increases. What is the EPS? Earnings per share. Earnings per share. ठीक है. तो यहाँ पे what first of all what are we studying? We are studying to arrange the money that is required to start the business. How we will arrange the money? We will choose that option which increases the wealth of equity shareholders. When does the wealth of equity shareholder increases? When MPS increases. And when does MPS increases? When earnings per share, that is EPS increases. Understood everyone? ठीक है. एक फॉर्मूला एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एग्जाम्पल नाउ से टैक्स रेट इज 50%. ठीक है. हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं. Now tell me, how much you want to raise money? That depends upon what? आपको बिजनेस में कितना पैसा चाहिए होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? आपको बिजनेस स्टार्ट करना है. ठीक है. आप रैंडमली तो नहीं बोल सकते मेरे को 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ चाहिए. कुछ तो डिसाइड करके एक फिगर डिसाइड करोगे बिजनेस में कितना पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए. किस पे सोचोगे? सोचो अगर आप बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं. किस पे? प्रोडक्ट के ऊपर. जो प्रोडक्ट के ऊपर. प्रोडक्ट किससे बनेगा? मेरे फिक्स्ड एसेट से बनेगा. यस. पहले मैं फिक्स्ड एसेट में देखूंगी मेरे को कितना मशीनरी लगेगा, प्रीमाइसेस लगेंगे. ठीक है. तो हाउ मच यू वांट टू रेज मनी डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट. इन अ सिंगल लाइन आई कैन से हाउ मच वी वांट टू रेज मनी. अगर मैं बोलूँ मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे को पूछेंगे ना लोग बिजनेस कितना पैसा चाहिए. वैसे तो मैं नहीं बोल सकती 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ या फिर आपको जितना देना है उतना दे दो. नहीं. हाउ मच वी वांट टू रेज विल डिपेंड अपॉन हाउ मच वी वांट टू इन्वेस्ट. हाउ मच वी वांट टू इन्वेस्ट. इन्वेस्ट वेयर? इन्वेस्ट इन बिजनेस. पता इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स. तो समझो मैंने एक नया बिजनेस चालू किया जिसके लिए मेरे को लगता है कि मेरे को फिक्स्ड एसेट्स लगेंगे 9 लाख रुपए के. कितने के लगेंगे? 9 लाख रुपए. क्या फिक्स्ड एसेट्स अपने आप चलेंगे क्या? फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ बिजनेस आई नीड व्हाट? वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल लगेगा मेरे को 1 लाख रुपया. मतलब हाउ मच इज माई टोटल रिक्वायरमेंट नाउ? How much is my total requirement for the business? 10 lakh rupees. बराबर. Now I have to raise this 10 lakh rupees. So I have option 1 that I can raise this full 10 lakh rupees from equity share capital. तो मैं ये पूरा 10 लाख रुपया किसके पास से रेज कर दूं? इक्विटी शेयर कैपिटल के पास से. When face value is ₹10. क्लियर हो गया? फिर दूसरा ऑप्शन अगेन हियर another option. Now how much you want to raise that depends upon how much you want to invest. तो सेम मेरे को फिक्स्ड एसेट्स चाहिए 9 लाख रुपीस के. फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द बिजनेस आई वांट वर्किंग कैपिटल ऑफ
1 lakh rupees. So total how much I want to raise? 10 lakh rupees. Now this 10 lakhs I thought that from equity share capital I will raise 5 lakh rupees with face value of rupees 10 and debt. 10% debt I will take. 10% debt I will take how much? 5 lakh rupees. तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख. यहाँ का भी टोटल कितना हो गया? 10 लाख. दिस इज माय बैलेंस शीट एंड दिस इज माय प्लान 2. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. दूसरा और एक लेते हैं एग्जाम्पल. सपोज यहाँ पे सेम मेरे को फिक्स एसेट्स चाहिए 9 लाख रुपीस के. फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ बिजनेस आई वांट वर्किंग कैपिटल ऑफ 1 लाख. नाउ दिस हाउ आई कैन रेज दिस मनी? आई एम थिंकिंग इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख का लूंगी. ठीक है. फिर 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लूंगी 3 लाख के. और डेट लूंगी मैं कितने का? 2 लाख का. और डेट को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो आई वॉन्ट 10 lakhs. I will raise 10 lakhs. This is my balance sheet of plan B. Understood everyone? Now which option shall I choose? कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी मैं? प्लान 1, प्लान 2 या प्लान 3? इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? आई हैव टू इवेल्युएट आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शंस व्हिच ऑप्शन विल आई चूज? ऑप्शन चूज करोगे? हाउ विल यू अरेंज द मनी? यू विल अरेंज इन सच अ वे वेयर वेल्थ इंक्रीजेस. वेल्थ कब इंक्रीज होगा? जब एनपीएस इंक्रीज होगा. सो जो प्लान आपको मैक्सिमम एनपीएस देता है, जो प्लान आपको मैक्सिमम एमपीएस देता है, आप वो सिलेक्ट करोगे. और अगर एमपीएस नहीं समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना, मतलब अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि एनपीएस कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? ईपीएस से डिसीजन लोगे. ठीक है. बिकॉज जिसका ईपीएस ज्यादा रहेगा उसका एमपीएस ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगा. आया समझ में? यस मैम. ओके. तो अभी हम लोग ईपीएस कैलकुलेट करते हैं. सपोज एस्टिमेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम. अज्यूम करते हैं तीनों भी बिजनेस के अंदर जो सेल्स है, से देयर आर 3 प्लान्स. प्लान 1, प्लान 2 and plan 3. ओके. तो ओके, इनकम स्टेटमेंट कहाँ से चालू होता है? हमारा सेल्स से स्टार्ट होता है. तो सेल्स अज्यूम करते हैं तीनों में भी सेम सेल्स है. 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख. सेल्स इज सेम. लेस वेरिएबल कॉस्ट 40%. तो 10 लाख का 40% कितना आएगा? 4 lakhs, 4 lakhs and 4 lakhs. बराबर. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन. सी अभी तक मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से मेरे इनकम स्टेटमेंट में कुछ इफेक्ट नहीं आया है. 6 लाख, 6 लाख and 6 lakhs. My income statement is not affected because of the capital structure. इसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे. ओके. सो अज्यूम करते हैं फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे 2 लाख रुपीज. 2 लाख, 2 lakhs and 6 minus 2, 4 lakhs. क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT. EBIT.
सो क्या अभी तक हमने कुछ भी माइनस कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के किया है? No. So No. up to EBIT, my income statement is not affected because of the capital structure. अब इसमें से क्या माइनस होता है? EBIT में से क्या माइनस होता है? Interest. इंटरेस्ट. Now tell me, क्या प्लान 1 के अंदर इंटरेस्ट है? Is interest there in plan 1? No. क्या प्लान 1 में इंटरेस्ट कब आएगा? जब डेट और बैंक लोन है. तो क्या प्लान 1 में डेट है क्या? पूरा का पूरा 10 लाख में किसके पास से रेज कर रही हूँ? इक्विटी शेयर कैपिटल के पास से. सो देयर इज नो इंटरेस्ट इन प्लान 1. प्लान 2 में चेक करो, क्या प्लान 2 में इंटरेस्ट है? Yes, ma'am. Yes, because there is a debt. What amount of debt it is? 5 lakh rupees. तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 5 लाख का 10%. That is, I can say 50,000. Yes. और प्लान 3. अब प्लान 3 में कितना आएगा? प्लान 3 में इंटरेस्ट है क्या कुछ? Yes, ma'am. Yes. कितना है प्लान 3 में? 20,000. 2 lakhs का 10% कितना आएगा? 20%. समझा? मतलब EBIT के बाद से मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के मेरे इनकम स्टेटमेंट में चेंजेस किया. आफ्टर EBIT व्हाट यू गेट? अर्निंग्स बिफोर टैक्स. तो ये कितना आएगा? 4 लाख. 4 lakh minus 50,000, 3 lakh 50,000, 4 lakh minus 20,000, 3 lakh 80,000. अंडरस्टूड टिल हियर? EBT में से क्या माइनस होगा? Tax. टैक्स. व्हाट इज द टैक्स रेट? हियर इट इज गिवन 50%. तो 4 लाख का 50%, 2 लाख. EBT में से टैक्स माइनस होता है तो क्या आता है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. यहाँ से 3 लाख का 3 लाख 50 का 15% करोगे तो कैलकुलेट करो. 3 लाख 50 का 50%, 1 लाख 75. तो कितना आ गया? 1 लाख 75 इज अर्निंग आफ्टर टैक्स. 2 लाख और 3 लाख 80 का 50%, दैट इज 1 लाख 90,000. So this comes to 1 lakh. Now after EAT क्या आएगा? Preference dividend. Yes. तो less preference. क्या प्लान 1 में प्रेफरेंस डिविडेंड है? No. नहीं है. क्या प्लान 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड है? No, ma'am. है? No, ma'am. No. प्लान 2 में क्या है? इक्विटी शेयर एंड डेट. सो देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड इन प्लान 2. क्या प्लान 3 में प्रेफरेंस डिविडेंड है? Yes, ma'am. Yes. So it is 12% of preferential capital 3 lakhs. तो 3 lakhs का 12% कितना आएगा? 36,000. करेक्ट? माइनस करो. ये कितना आएगा? EAT के बाद EAT में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते तो क्या मिलता है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी shareholders. So this will be how much? 2 lakhs, 1 lakh 75,000 and 1 lakh 90 minus 36,000. So this is 1 lakh 54,000. बराबर? Now if I want to find out EPS, how will you find out EPS? Earnings for equity share upon number of equity Earnings shares. for equity shareholders divided by number of equity shares. So here I have to divide number of equity shares. How much equity shares are there in plan 1? Plan 1 में कितने number of equity shares रहेंगे? How do we find out number of equity shares? Equity share capital divided by face value. तो 10 लाख
is the capital divided by face value is 10. So how much? 1 lakh rupees. Sorry, 1 lakh number of shares. 1 lakh number of shares. Divide करो, you will get the EPS. So 2 lakh divided by 1 lakh. That is called as 2. फिर second वाले में in plan 2, how much is the capital? 5 lakh. Face value is 10. How many number of equity shares? 5 lakh divided by 10. This comes to 50,000. 50,000. So 1,75,000 divided by 50,000. This comes to 3.5. And third one is plan 3. तो plan 3 में क्या आएगा? Plan 3 में how many number of equity shares? Face value is same here. Face value is rupees 10 only. So same number of shares, 5 lakh divided by 10, that is 50,000. So 1,54,000 divided by 50,000. That comes to 3.08. Now tell me, which plan will you choose? Which is the best plan of raising the money? Plan 3. Which? Plan 3. Earnings per share ज़्यादा है उसका. अर्निंग्स पर शेयर ज्यादा है. कैसे? सेकेंड प्लान में 3.5 है, यहाँ पे 3.08 है. Plan 2. This is 3.08. 3.5 is greater than 3.08. है ना? Yes, ma'am. तो कौन सा प्लान चूज? तो हम लोग यहाँ पे क्या एडवाइस देंगे कंपनी को? मतलब व्हाट कुड बी द कंक्लूजन हियर? Conclusion could be that the company is advised to select which plan? To select plan 2. Why? Because as it will maximize the EPS. It will maximize the EPS. Understood everyone? Yes? अब यही फॉर्मूला से हमने ये EPS कैसे कैलकुलेट किया? इतना बड़ा वर्टिकल स्टेटमेंट बना के. Now, if I tell you directly try to get the formula of EPS. Directly get the formula of EPS. मतलब shortcut for EPS क्या होगा? In all the three cases, what is common? In all the three cases, what is common? Up to what stage all the three plans are common? Up to EBIT. बराबर? That means can I say that for capital structure, the EBIT of all the three plans are same? ठीक है, कोई भी प्लान हो अप टू EBIT सब सेम ही रहेंगे. जो भी चेंज होगा वो EBIT के बाद ही चेंज होगा. मतलब यहाँ पे EBIT क्या रहेगा? कांस्टेंट. अब EBIT से मेरे को EPS तक जाना है, तो कैसे जाएंगे हम लोग? EPS इज इक्वल टू क्या करेंगे? EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या मिला? EBT. बराबर. अब यहाँ से मेरे को जाने का है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में. तो ये EBT कौन सा आइटम है? प्री टैक्स आइटम. मेरे को कहाँ पे जाना है? पोस्ट टैक्स पे. तो प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कल ही सिखाया था. 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके. नहीं, इनटू करके. अगर पोस्ट से 3 में आना है तो डिवाइड करें.
करेंगे, प्री से पोस्ट में जाना है तो इनटू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ये क्या मिला मेरे को, ईबीटी मिला, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 माइनस टैक्स रेट के साथ। तो ये कहाँ पे पहुंची मैं, ये कहाँ पे पहुंची मैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यहाँ पे पहुंच गई, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पे पहुंच गई। अब इसमें से क्या माइनस करूंगी मैं, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगी, प्रेफरेंस डिविडेंड। टेल मी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो क्या मिलता है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो क्या मिलेगा, Earnings for equity अर्निंग्स shares. फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मिल गया अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। If you want to rectify, you can rectify EBIT minus interest into 1 minus tax rate minus preference dividend. Otherwise इस फॉर्मूला को डिराइव कैसे करना है, सिंपल लॉजिक याद रखो, लॉजिक याद रखा तो फॉर्मूला नहीं भूलोगे। जो भी है वो इस इनकम स्टेटमेंट में से ही है। तो इनकम स्टेटमेंट कहाँ से चालू होता है मेरा, EBIT से चालू होता है, बराबर। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या मिलेगा मेरे को, ईबीटी मिलेगा। तो मैंने वही, ये वर्टिकल है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है। तो ईबीटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, इसको मेरे को लेके जाना, इसमें से टैक्स माइनस करना है, तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना है पोस्ट टैक्स में। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस टैक्स रेट के साथ, तो मिला मेरे को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, उसमें से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो मेरे को मिला अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो माय न्यूमरेटर, माय फुल न्यूमरेटर इज व्हाट, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको मैं डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ईपीएस। इज दैट क्लियर। अब यही फॉर्मूला अगर हम लोग प्लान 2 का ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो EPS of plan 2. तो टेल मी व्हाट इज द EBIT ऑफ प्लान 2, प्लान 2 का EBIT कितना है, 4 लाख रुपीज। सो 4 लाख माइनस हाउ मच इज द इंटरेस्ट, 50,000 into 1 minus tax rate, how much is the tax rate, 0.5, 1 minus 0.5 minus how much is the preference dividend in plan 2, there is no preference dividend, 0। डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ, how much are the number of equity shares in plan 2, 50,000। निकालो कैलसी में, पहले 4 लाख माइनस 50,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 50,000, तो 3.5। यही अगर प्लान 3 का निकालना है तो ईपीएस ऑफ प्लान 3 तो कितना आएगा, हाउ मच इज द ईबीआईटी, 4 लाख माइनस हाउ मच इज द इंटरेस्ट इन प्लान 3, 20,000 into 1 minus 0.50 tax rate minus how much is the preference dividend, 36,000 divide by number of equity shares. How much are the number of equity shares, 50,000। करो कैलसी में 3.08 ही आएगा। Understood everyone? Yes, ma'am. अब इसी से क्या होता है ना, अब ये 2 प्लान है, ठीक है। अब ये प्लान 1 है, प्लान 2 है और प्लान 3 है। इससे ही बनता है इनडिफरेंस लेवल। इनडिफरेंस लेवल मतलब क्या, indifference level is that level of EBIT, indifference level is that level of EBIT where EPS of plan 1 is equal to EPS of plan 2। indifference level मतलब क्या, कि हम कोई भी प्लान चूज करें हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई भी प्लान चूज करें हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ऐसा कौन सा EBIT होगा
वो ऐसा कौन सा ईबीआईटी होगा जिस लेवल पे हम इनडिफरेंस रहेंगे। हम इनडिफरेंस रहेंगे मतलब क्या, हम प्लान ए से पैसा चूज करें या प्लान 2 से पैसा चूज करें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे बिजनेस हमारे ईपीएस को फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे किस पे ज्यादा फोकस करना है, ईपीएस पे फोकस करना है। तो हम एक ऐसा प्लान चूज करेंगे जिससे हमारे ईपीएस को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, इंडिफरेंस लेवल। नेक्स्ट इज indifference level, or you can call it as indifference point. Okay. So what is indifference level or indifference point? So indifference level बिटवीन टू प्लान्स, ये हमेशा दो प्लान्स के बीच में होगा, कभी भी सिंगल नहीं होगा, दो प्लान्स के बीच में। इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी which gives us the same EPS। मतलब ऐसा एक ईबीआईटी का लेवल जहां पे दोनों भी प्लान्स क्या रहेंगे, मतलब दोनों का भी ईपीएस क्या होगा, सेम होगा। एंड अगर दोनों का ईपीएस सेम है, सी हम अपना डिसीजन कौन से बेसिस पे लेते हैं, ईपीएस पे बेसिस पे लेते हैं कि जिस प्लान का ईपीएस ज्यादा रहेगा वो प्लान हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर समझो दोनों भी प्लान का ईपीएस सेम है, दोनों भी प्लान का ईपीएस सेम है, देन वी आर इनडिफरेंट, तो फिर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। तो ये कब होगा, एक पर्टिकुलर ईबीआईटी पे आके होगा। तो एट अ पर्टिकुलर ईबीआईटी और ईपीएस विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिफरेंस लेवल। ठीक है, सो दैट मीन्स at indifference level of EBIT, what will happen at indifference level of EBIT? EPS of plan 1 will be equal to EPS of plan 2। एक प्लान का ईपीएस दूसरे प्लान के ईपीएस से क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सो एट इंडिफरेंस लेवल वी कैन गो एट एनी पॉइंट, एट इंडिफरेंस लेवल go for any plan on the basis of, ठीक है। अब हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही ना, ऊपर वाले एग्जाम्पल में ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल कैलकुलेट EPS, sorry, calculate indifference level between plan 1 plan 2 and verify। ठीक है, चलो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इंडिफरेंस ये चेक करते हैं, इंडिफरेंस लेवल कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज द इंडिफरेंस लेवल? EPS ऑफ प्लान 1 इज इक्वल टू EPS ऑफ प्लान 2, बराबर। प्लान 1 और प्लान 2 का EPS इक्वल है। तो चलो अभी बोलो EPS का फॉर्मूला क्या आएगा? EPS का फॉर्मूला क्या आता है, याद करो, EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये मिला मेरे को EBT, इसको कन्वर्ट करना है पोस्ट टैक्स में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट,
ये बन गया मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, बराबर। और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये जो भी डेटा रहेगा ये किसके लिए रहेगा, प्लान 1 का रहेगा, ऑफ प्लान 1। This will be equal to EPS of plan 2. Again, what is the formula of EPS? बोलो, EBIT minus interest into 1 minus tax rate minus preference dividend divide by number of equity shares of plan 2। ठीक है, चलो अब ऊपर वाले डेटा से हम लोग वैल्यूज डालते जाते हैं। प्लान 1, अब EBIT तो आपको ढूंढना है, EBIT इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन, EBIT मुझे ढूंढना है, माइनस इंटरेस्ट। प्लान 1 में क्या इंटरेस्ट है, प्लान 1 प्लान 1 प्लान 1 प्लान 1, इज देयर इंटरेस्ट, नो, देयर इज नो इंटरेस्ट। सो 0 into 1 minus how much is the tax rate, 0.5 minus is there preference dividend in plan 1, plan 1 में preference dividend preference dividend preference dividend, no preference dividend, so this will be 0 divide by number of equity shares. So how much are the number of equity shares in plan 1, plan 1, plan 1, plan 1, number of equity shares 1 lakh। तो ये आ जाएगा, समझना है ना तुम्हें, Yes, ma'am. प्लान 2 में भी मेरे को वो EBIT तो मेरे को ढूंढना है ना, बिकॉज इन डिफरेंस लेवल इज गोइंग टू बी दैट EBIT। और इंटरेस्ट, प्लान 2 में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट प्लान 2 50,000 is the interest, yes, into 1 minus 0.50 minus there is no preference dividend in plan 2 divide by number of equity shares. How much are the number of equity shares in plan 2? It is 50,000. This is, बस अब इसको सॉल्व करना है और EBIT निकालना है। चलो EBIT minus 0, EBIT minus 0, anything minus 0, anything, so EBIT minus 0 is what, EBIT into 1 minus 0.5 minus 0 nothing divide by 1 lakh is equal to, ये EBIT minus 100 रहेगा, सॉरी 50,000, और ये 1 minus 0.5 तो 0.5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 0.5 EBIT minus 0.5 into 50,000, और ये माइनस 0 है तो माइनस 0 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय व्हाट, 50,000। समझा ये पॉइंट? Yes, ma'am. तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 EBIT अपॉन 1 lakh इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.5 EBIT माइनस 50,000 इंटू 0.5, 50,000 इंटू 0.5, 25,000 minus 25,000 divide by 50,000, बराबर। अब ये यहाँ पे कैंसिल हो सकता है तो 0.5 डिवाइड बाय 1 लाख कर दो, या फिर एक काम करती हूँ मैं 50,000 को ना यहाँ पे लेके आती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 को यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, सो 50,000 इंटू 0.5 EBIT अपॉन
1 lakh is equal to 0.5 EBIT minus 25,000. करेक्ट. तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 0 1 0 5 1 जार 5 2 जार. तो ये क्या बचेगा 0.5 EBIT डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 EBIT माइनस 25,000. अब ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा बराबर. This will be 0.5 EBIT is equal to 2 into 0.5 EBIT minus 25,000. तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. So this will be 0.5 EBIT 2 into 0.5 1. So this will be 1 EBIT minus 25,000 into 2 50,000. So this will be, मैं 50 को यहाँ पे लेके आऊंगी. 50,000 is equal to EBIT minus 0.5 EBIT. So this will be 50,000 is equal to 1 minus 0.5 0.5 EBIT. EBIT is equal to 50,000 divided by 0.5. So EBIT is equal to 50,000 divided by 0.5. EBIT is equal to 1 lakh. समझा? Yes, ma'am. Yes. तो EBIT क्या आया 1 lakh. So this EBIT क्या write it down? EBIT is that indifference level. EBIT is that indifference level where the EPS is same. अब इसको वेरीफाई करते हैं. What is the EBIT level? 1 lakh. अब देखो इसको वेरिफिकेशन करते हैं हम यहाँ पे. पर वेरीफाई करते हैं. Plan 1, Plan 2. दोनों का EBIT कितना है? EBIT will remain same. 1 lakh here, 1 lakh here. इसमें से क्या माइनस करोगे EBIT में से? पहले इंटरेस्ट माइनस करोगे. इंटरेस्ट प्लान 1 में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है. प्लान 2 में कितना था इंटरेस्ट? प्लान टू इंटरेस्ट कितना है? 50,000 इंटरेस्ट है. तो माइनस 50,000 कितना आया? अर्निंग्स बिफोर टैक्स 1 lakh एंड 50,000. इसमें से क्या माइनस करेंगे हम लोग? टैक्स 50%. सो 50,000 यहाँ पे माइनस होगा. 25,000 समझ रहा है ना? 25,000 यहाँ पे 1 lakh minus 50,000 50,000. This is going to be by earnings after tax. This is going to be 25,000. इसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड. There is no preference dividend in both the case. Then you will get earnings for equity shareholders. Earnings for equity shareholders. आएगा 50,000 25,000. किससे डिवाइड करेंगे इसको हम लोग? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ. Divide by number of equity shares. How many number of equity shares here? In plan 1, 1 lakh. In plan 2, 50,000. देखो डिवाइड करके कितना आता है EPS? 50,000 डिवाइड बाय 1 lakh. कितना आया EPS? 0.5. यहाँ पे भी 25,000 डिवाइड बाय 50,000. कितना आया EPS? 0.5.
So in both the plans, see the magic, both the plans 0.5, 0.5 EPS. So at which level of EBIT you got? See, ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले प्लान्स में क्या था? How much was the EBIT? 4 lakhs. So at 4 lakhs, the EPS were different. But when your EBIT is 1 lakh, your EPS are same. So at 1 lakh level of EBIT, we are indifferent about both the plans because they give us the same earnings per share. Is that clear? ठीक है, so that is the indifference level. आया समझ में इतना? ठीक है? Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट एक लास्ट कंसेप्ट है, इससे ही कनेक्टेड है, जो नेक्स्ट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. Tell me what is the break even point? What is break even point? जहाँ सब जीरो होता है प्रोडक्शन. सब मतलब क्या? EBIT भी जीरो होगा. मैम जहाँ सब इक्वल होता है उस स्टेप का पोजीशन. नो प्रॉफिट नो लॉस बोल सकते हैं हम लोग. यस मैम. Yes, it is a place, it is a situation where there is no profit and no loss. तो हम यहाँ पे कौन से ब्रेक इवन का बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट. तो टेल मी, हम लोग के लिए, हम लोग का ये कैपिटल स्ट्रक्चर में फोकस किसके ऊपर है? वी आर फोकसिंग ऑन विच फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मतलब कौन सी चीज से हम डिसीजन ले रहे हैं? EBIT. EPS के ऊपर, अर्निंग्स पर शेयर पे डिसीजन ले रहे हैं ना. तो यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट विल बी सच पॉइंट, विल बी दैट लेवल ऑफ EBIT वेयर योर EPS विल बी जीरो. Indifference point में क्या था? It was that level of EBIT where EPS of plan 1 is equal to EPS of plan 2. लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होगा? एक ऐसा EBIT का लेवल रहेगा जिसमें आपका जो ये है EPS है, आपका EPS जीरो होगा. ठीक है, so that is called as financial break even point. So financial break even point, financial break even point is that minimum EBIT, minimum EBIT मतलब आपको इतना तो EBIT अर्न करना ही पड़ेगा which a plan should generate. हमारे बिजनेस में भी हम क्या बोलते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस. मतलब हमारा सेल्स ऐसा लेवल का होना चाहिए जहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस है. मतलब मिनिमम इतना सेल्स तो करना ही पड़ेगा. अगर वो मिनिमम सेल्स के हम नीचे गए तो फिर लॉस हो जाएगा. अगर लॉस नहीं करवाना, चलो प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा, लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए. तो वो लॉस नहीं करवाना तो वो मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम सेल्स तो करवाना ही पड़ेगा. तो दैट इज वो ब्रेक इवन पॉइंट है. यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है. तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न्स क्या दे रहे हैं? हम EPS रिटर्न्स दे रहे हैं. तो EPS नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट इट शुड बी पॉजिटिव. नेगेटिव कब जाएगा? जब आपका प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा. तो आपको कम से कम इतना तो EBIT अर्न करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट EPS आपका जीरो रहे. भले आप ज्यादा ना दो, लेकिन एटलीस्ट लॉस तो ना करो. So which a plan should generate so that equity shareholders are neither at profit nor at loss. क्या लेवल होगा? या तो neither at profit nor at loss. So we can say that at financial break-even point, what happens? EPS of plan is zero.
EPS ऑफ प्लान इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मेन किसके ऊपर फोकस है? EPS के ऊपर, अर्निंग्स पर शेयर के ऊपर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नाइदर एट प्रॉफिट नॉर एट लॉस। व्हाट डज दैट मींस? दैट द EPS ऑफ प्लान इज 0। ठीक है। FBP क्या है? FBP is a measure of financial risk. FBP is the measure of financial risk. Higher the FBP, greater is the financial risk. Greater is the financial, एंड अगर मेरा FBP 0 है, FBP 0 indicates no financial risk, indicates no financial risk। बराबर। अब FBP का फॉर्मूला क्या है? ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना फॉर्मूला पे। सी हाउ इट इज डिराइव्ड। व्हाट हैपेंस एट FBP? व्हाट हैपेंस एट FBP? माय EPS इज इक्वल टू 0। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EPS? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EPS? EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट minus preference dividend divide by number of equity shares is equal to 0। is equal to 0। ये मैंने EPS का फॉर्मूला लिखा। बराबर। अब ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू से यहाँ पे जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 0 क्या आएगा? 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0। सो दैट मीन्स कैन से EBIT माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट EBT। माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट EBT। ठीक है। तो अब धीरे धीरे अब मैं किसको लेके जाऊंगी वहां पे? इज इक्वल टू के वो साइड पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को लेके जाएंगे। So this will be EBIT minus interest into 1 minus tax rate। यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नेगेटिव में है, इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी प्रेफरेंस डिविडेंड। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am। अब मैं किसको लेके जाऊंगी? अब कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन? अब ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो देन आई विल टेक 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस टैक्स रेट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड के। सो दिस विल बी EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। यहाँ तक कुछ डाउट? No, ma'am। ओके। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट EBT। तो क्या करूं? तो फाइंड आउट EBT तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को उधर लेके जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस में है, ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी EBIT इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड upon 1 minus tax rate. This becomes the formula. So what is the formula?
फॉर्मूला ऑफ एफबीपी इट इज ईबीआईटी। ये जो है ना, ये ईबीआईटी, दिस इज योर एफबीपी। ये वो लेवल ऑफ ईबीआईटी रहेगा जहां पे आपका ईपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या मिल रहा था, ये वो लेवल का ईबीआईटी है जहां पे आपका ईपीएस ऑफ प्लान 1 इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान 2, बराबर। और ये वो लेवल का ईबीआईटी है जहां पे आपका ईपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। Yes. अब अगर समझो मेरे को ऊपर वाले एग्जांपल से कैलकुलेट करना है एफबीपी, ठीक है, ऊपर के जो क्वेश्चंस थे ना उसमें अगर मेरे को कैलकुलेट करना है एफबीपी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज नाउ एफबीपी फॉर अबाउट 3 प्लान्स, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाउ डू वी फाइंड एफबीपी। सो इट इज ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो अगर मैं प्लान 1 का बात करूं, प्लान 1 में, प्लान 1 ये रहा प्लान 1, क्या इसमें कुछ इंटरेस्ट है, नहीं है। क्या इसमें कुछ डिविडेंड है, नहीं है, ठीक है। सो देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो डिविडेंड, सो इट इज 0 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0.50। तो ये तो क्या आएगा, प्लान का क्या आएगा, 0। मतलब प्लान 1 में अगर ईबीआईटी 0 रहेगा तो ईपीएस 0 आ जाएगा। प्लान 2 में, प्लान 2 में क्या इंटरेस्ट है, प्लान 2 में क्या इंटरेस्ट है, यस, कितना है, 50,000 का, एंड देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड। सो दिस विल बी 50,000 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0.50। तो ये क्या आएगा, 50,000 प्लस 0 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 50,000। तो प्लान 2 के अंदर जब ईबीआईटी 50,000 होगा, प्लान 2 में जब ईबीआईटी 50,000 होगा तब ईपीएस 0 आएगा, ठीक है। एंड प्लान 3, तो प्लान 3 में क्या है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों है। हाउ मच इज द इंटरेस्ट हियर, 20,000, एंड हाउ मच इज द प्रेफरेंस डिविडेंड, 36,000। 20,000 and 36,000. So 20,000 plus 36,000 divided by 1 minus 0.50. So this will be 20,000 plus 36,000 divided by 0.50, 72,000. So this comes to 90. समझा। तो प्लान 3 का अगर मेरे को ईपीएस 0 चाहिए तो मेरे को ईबीआईटी कितना कमाना पड़ेगा, 92,000। मतलब प्लान 3 के अंदर कम से कम, प्लान 3 के अंदर कम से कम आई हैव टू अर्न 92,000 सो दैट माय शेयर होल्डर्स आर नाइदर एट प्रॉफिट नॉर एट लॉस। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, चलो लिख लो इतना। कहाँ तक लिखा था, यहाँ से लिखना है, किधर से लिखना है, Yes, ma'am. कैपिटल स्ट्रक्चर से ना। जूम इन करूँ या दिख रहा है, दिख रहा है मैम।
बोलना हाँ, स्क्रॉल डाउन करना हो तो। Done writing? Yes, ma'am. Done writing? No, ma'am. Done, ma'am. Done. कौन से में से करें? जी। Very, very, very excellent. That's it. Itu yang kita bukan really. Actually, mula ni persoalan. Pero pa, ni ada mula satu. Hindi bibili saya. Yung kita niya kan, jadi ini bulan ni. Ini kasar orang. Saya siap. Ini. Ya sewari. Sidik sama. Lami. Baik. Kalau non-veg.
Done? Yes, ma'am. हो ना, लिख रहे हो ना? Yes, ma'am. चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो इन केस अगर ऐसा है तो। ये ज्यादा हो गया लिखना ऐसा। Done, ma'am. मैम थोड़ा नीचे स्क्रॉल।
डन मैम। डन हो गया। लास्ट भी विशाखा डन। Yes, ma'am. So tomorrow revise this and come. We will solve questions on this and there are some theories. मतलब हमारा क्या क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ये इंडिफरेंस पॉइंट हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, बाकी तो थियरीज ही है, ये भी थियरी है, ये भी थियरी है, और ये चारों भी थोड़े से थियरी है, थोड़े से फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एंड देन फिर थियरीज कर देंगे। ओके ओके मैम। चलो, we stop for the day. We will continue tomorrow. Okay. ओके मैम। Yeah. Bye. बाय मैम। Bye. Bye.